So hello my dear students, this is my YouTube channel and this is Learning with Ganesh, and today I am going to continue the science project practical. Previously I have given you physics project, chemistry project. Now we will do biology project. Biology, as it is for all the science subjects, same rules, same copy, same paper, and same you have to leave the space and come on be ready with all your papers and materials, whatever things are required. Just project papers and 3 colors pens, pencil, because this is biology. Means here the important thing is diagram. The diagram you have to draw it very neatly and very what you call labelly. Now we will start experiment number 1. Now here, as it is, take a black pen, give page number whatever it is, page number 3 you have to write, and today's date you have to write, date whatever date is there. Now here you have to write experiment number 1, experiment, experiment number 1, biology. What is experiment number 1? Now you know plants take photosynthesis. During photosynthesis they prepare their own food. So what are the raw materials it's required for the completion of photosynthesis? First, from roots they draw mineral salts and water, and from sunlight they take light, and they take carbon dioxide. How do that carbon dioxide enter into the leaf? Leaf is a main part of a plant which is called the manufacturer of, because leaf produces food for plant. So in the leaf there is a stomata. In the lower epidermis of the leaf, there you see a small piece. You just pluck a small lily flower, tear a small piece and see it through the microscope. There you can see a stomatal. Once it is closing, opening, closing, opening, closing, opening. As we breathe through our nose, so same in the stomata, exchange of gases takes place. Carbon dioxide enters, oxygen gives out. When? During photosynthesis. But during respiration, oxygen is gives in and carbon dioxide is gives out. So that stomata we have to find. We have to, here this experiment is to find out how stomata works. How stomata works, that is the important point. Now aim. What is aim? Write here with black pen, aim, and with a green pen you write. This is the first thing, to prepare a temporary mount of a peel to show its stomata. Now second is requirements. Now from here itself you have to write with blue pen. To prepare a temporary mount of a peel. Peel का मतलब होता है एक छोटा सा पत्ता का टुकड़ा. To show its stomata. उस छोटे से टुकड़े में हम स्टोमेटा देखते हैं कैसा है. रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए? लीफ ऑफ ए प्लांट, जो लिली फूल का जो होता है उसका एक तो पत्ता, जो ब्रायोफाइलम के ग्रुप में आता है. फोर्सेप्स का मतलब होता है चिमटा, जिससे आप आराम से पकड़ सकते हैं. ग्लास वॉच, एक छोटा सा कांच का ग्लास. स्लाइड, जो हम माइक्रोस्कोप में जो रखेंगे उसको देखने के लिए कांच का एक ये होता है. कवर स्लिप, ब्रश चाहिए उसको साफ़ करने के लिए. निडल्स, कुछ सुई ज़रूरत पड़ेगी. सैफरनिन, हमको एक जिसमें हम पत्ते को तुरंत तोड़ के हम उसमें डाल दें ताकि वो पत्ता कुछ समय तक जीवित रहे, क्योंकि तोड़ने के बाद पत्ता मर जाता है. उसको कुछ देर तक उसके एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रक्रिया शुरू रहे, स्टोमेटा बंद ओपन होता रहे, इसलिए हमको सैफरनिन की ज़रूरत होगी. थोड़ी सी ग्लिसरीन, फिर फिल्टर पेपर, थोड़ा सा पानी निकालने के लिए,
और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसके ज़रिए हम उसको देख सकते हैं कि इसमें कैसा आपका स्टोमेटा ओपनिंग होता है। ओके, देखना है कि इसमें बेसिक्स प्रिंसिपल्स क्या इन्वॉल्व है, ये हमको अभी देखना है। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स? हाँ, नाउ द बेसिक प्रिंसिपल, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? स्टोमेटा आर द माइन्यूट अपर्चर, यानी जो खुलता है बंद होता है कुछ एक थिंग है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जो लीफ के सरफेस में पाया जाता है। दे आर जनरली मोर ऑन लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस का मतलब होता है जो पत्ता है, पत्ता का निचला पार्ट को हम कहेंगे लोअर एपिडर्मिस, पत्ता का नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। ईच स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मतलब क्या है? स्टोमेटा का प्लूरल है स्ट्रोमा। ईच स्ट्रोमा इज सराउंडेड बाय टू बीन शेप। अभी हम आपको एक तो डायग्राम बताते हैं। इस डायग्राम में देखिएगा दो बीन शेप होगा। जस्ट देखिए, ये यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैं दिया हूँ, छोटा सा है। इसमें देखिएगा, इसमें सराउंडेड किया है दो बीन शेप सेल्स जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो कोई स्टोमेटा बंद होता है, खुलता है, एक बार बंद का है, एक बार खुला हुआ है। तो स्टोमेटा का वर्क क्या है? स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लीफ। लीफ और एटमॉस्फेयर के बीच में जो हवा का, वाटर वेपर का जो एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक तो डायग्राम करेंगे। डायग्राम देखते हैं, डायग्राम के बाद हम लोग इसका प्रोसीजर और इसका रिजल्ट हम लोग देखें। तो हमने एक पत्ता लिया है, ये पत्ते का ऊपर पार्ट है, इस डाली को कहते हैं पेटियोल। ये ऊपर का पार्ट है एपिडर्मिस, से नीचे के पार्ट को कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। इस पत्ते को हमने क्या किया है? फोल्ड किया है। इस पत्ते को हमने फोल्ड किया, इस पत्ते को ऐसे मोड़ दिया है। मोड़ करके हमने क्या किया, इसको इसमें से एक छोटा सा फोर्सेप्स से, चिमटा से हमने छोटा सा छिलका को यहाँ से निकाला है। कहाँ से? लोअर एपिडर्मिस से छिलका को निकाला है। तो इसका मतलब यही हुआ है, टेकिंग ऑफ लीफ पील। पील का मतलब होता है एक छोटा सा छिलका छीलना फ्रॉम ए लीफ। हमने एक लीफ से, लोअर एपिडर्मिस से एक छोटा सा छिलका को छीना है। फिर इस छोटे से छिलके को हम एक ग्लास स्लाइड में रख के हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद जो चित्र दिखेगा उसको भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले इस वीडियो को आप लोग पॉज करके इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करिएगा। इसके बाद उस छोटा सा जो पील हमने यहाँ से जो निकाला है उसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे कैसा दिखता है, दैट वी विल सी। ओके, जब हम इस छोटे से जो लीफ के टुकड़े को अगर हम स्लाइड में रख के माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा बारी बारी से। एक ही चीज़ है, बट क्या है कि यहाँ पर ये जो स्टोमेटा ओपन हो रहा है फिर बंद हो रहा है, हमको इसका मोशन दिखेगा। एक बंद खुल रहा है, एक बंद हो रहा है, बट मैं उसको दो अलग अलग चित्र में बनाया, दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। वही पार्ट जब देखिए खुला है, ये खुला है, इसे स्टोमेटल, ये ओपन है, स्टोमेटल अपर्चर ओपन है। वही चीज़ बंद हो जाता है तो ऐसा दिखेगा स्टोमेटल, ये ओपन में है, ये आपका क्लोज में है। और ये जो बाहर में आपको ये जो इस तरह से दिख रहा है इसको कहते हैं गार्ड सेल्स, जिसको गार्ड करता है। और ये छोटा सा जो पार्ट है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। और इसी गार्ड सेल के अंदर ही आपको क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट is only responsible for the green color and for the process of photosynthesis। पत्ते के रंग हरे इसलिए होते हैं ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, और पत्ते में खाना इसलिए बनता है ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। तो दो इम्पॉर्टेंट उसके फंक्शंस है। तो ये सेम पार्ट है लीफ पील विथ ओपन स्टोमेटा के साथ, और वही चीज़ है लीफ पील विथ क्लोज स्टोमेटा के साथ। दोनों चित्र एक ही है, बट ये खुलता है तो ऐसे दिखता है, वही चीज़ जब बंद होता है तो आपको ऐसे दिखता है। इज इट क्लियर? नाउ इसको अच्छे से पॉज करने के बाद इसको अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करिए, बिकॉज डायग्राम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द बायोलॉजी
प्रैक्टिकल। ओके, बहुत ही नीट एंड क्लीन इसको डायग्राम ड्रॉ करोगे, लेबल्स ड्रॉ करोगे, और ड्रॉ करने के बाद इसको पॉज करके ड्रॉ करोगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशंस करेंगे, फिर रिजल्ट्स करेंगे, और उसके बाद हम ना इसको प्रोसीजर जो है उसको प्रोसीजर यहाँ लिखेगा ब्लैक पेन से। ये सारा प्रोसीजर्स को आपको पॉज करके उतार लीजिए। अब इसके बाद प्रोसीजर के बाद आता है नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अरे प्रोसीजर पूरा उतार दीजिए। उतारने के बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ब्लैक पेन से ऑब्जर्वेशंस, कि हमने ये सब करके क्या क्या ऑब्जर्व पाया। स्टोमेटल ओपनिंग क्लोज पाया, ओपन पाया। फिर इसके बाद रिज़ल्ट हमें क्या मिला, रिज़ल्ट लिखिए। हो गया। उसके बाद आप आइए प्रिकॉशंस। इसमें प्रिकॉशंस के कुछ स्टेप्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का आपको प्रिकॉशंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जब हम कुछ कर रहे हैं तो व्हाट आर द थिंग्स टू बी टेकन एज ए प्रिकॉशनरी मेजरमेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल योर फर्स्ट experiment in biology. So we will soon meet you with another topic in another subject. Till then, bye.